Hi friends, I am Ram Patil. Welcome to my channel Make Guru. Subscribe to my channel, like my videos and share my videos with your friends. And don't forget to press the bell icon so you can get the regular notifications. So friends, in today's video, we will go through the third type, very important third type of numerical on Porter governor. So let's go through it. Hi friends, so today's in lecture we will cover the numerical on third type of Porter governor. ओके इससे पहले हमने पोर्टर गवर्नर के दो टाइप ऑलरेडी न्यूमेरिकल के दो टाइप ऑलरेडी कवर किए हैं। आज हम थर्ड टाइप ऑफ पोर्टर गवर्नर का न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। उसके बाद का जो वीडियो होगा जो लेक्चर में अपलोड करूँगा उसमें आप जो पोर्टर गवर्नर का जो फोर्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है वो हम उसमें कवर करेंगे। सी पोर्टर गवर्नर पे टोटल 4 अलग तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि यदि आपने ये चारों टाइप्स ये जो मेरे 4 वीडियोज़ है वो चारों वीडियोज़ आपने अच्छी तरह से स्टडी कर लिए तो आपको डेफिनेटली कुछ अलग तरह से करने की ज़रूरत नहीं होगी और यू कैन गेट दी फुल मार्क्स। यू कैन सेक्योर द फुल मार्क्स ऑन न्यूमेरिकल आस्क ऑन पोर्टर गवर्नर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एन इंजन ऑफ पोर्टर टाइप, in an engine governor of Porter type, the upper and lower arms are 200 mm and 250 mm respectively. So see, upper arm and lower arm हमें दी गई है. So this is the arm, upper arm, and this is the lower arm. Okay. So upper arm will be of 200 mm and lower arm will be 250 mm respectively. So first of all हम whatever the given things we will put it down. So upper arm it is nothing but it is the BP. P is the point of pivot. Okay, P is the point of, जैसे कि हमने previous videos में देखा है, P is the point of pivot. So BP we have given, BP is equal to how much? That is 200 mm is nothing but 0.2 meter BP. Now BD, lower arm, BD, D is the point here, BD. So BD we have given how much? BD will be 250 mm. 250 mm is nothing but 0.25 meter. Now this upper arm and lower arms are pivoted on axis of rotation C. This is the axis of rotation and P is the point of. So this upper arm BP and lower arm BD pivoted on axis of rotation at point P and at point D. इसका मीनिंग ये होता है। The mass of central load is 15 kg. See, in case of Porter governor, here it is the central load is connected. Okay, जैसे कि हमने previous वीडियो में देखा है, central load यहाँ पे कनेक्ट होता है point D पे. Okay, तो central load is denoted by capital M. So that will be 15 kg. The mass of each ball is 2 kg. Mass of the fly ball, see this is the fly ball. Okay, so mass of the each ball is denoted by small m, that will be 2 kg. The friction of the sleeve together with the resistance of operating gear is equal to the load of 25 Newton at the sleeve. तो हमें सी पोर्टर गवर्नर पे दो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं कि एक केस में जो है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल में फ्रिक्शनल फोर्स दिया है तो हमें ये कंसिडर करना होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिया है? दैट विल बी 25 न्यूटन। कुछ केस में कुछ प्रीवियस वीडियो में फ्रिक्शनल फोर्स निग्लिजिबल है, लेकिन इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स हमें कंसिडर करना होगा। सो दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 25 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स जनरेटेड बाय कैपिटल एफ, दैट विल बी 25 Newton at the sleeve. Okay, if the limiting inclination of the upper arms to the vertical are 30 degree and 40 degree. See, इस न्यूमेरिकल में डायग्राम नहीं दिया गया है। पोर्टर गवर्नर की किसी भी न्यूमेरिकल में डायग्राम नहीं दी गई है, तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ओके, सो हमें दो डायग्राम ड्रॉ करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हमें पूछा गया है
find taking into friction into account, we are considering the friction in account range of speed of governor. तो हमें रेंज ऑफ स्पीड कैलकुलेट करना है. रेंज ऑफ स्पीड मतलब डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड. रेंज ऑफ स्पीड हमें दिया है, इसलिए हमें थिंक करना होगा कि हमें दो डायग्राम ड्रॉ करनी होगी. one of the diagram for maximum position and one of the diagram for minimum position. Means we have to calculate n2 and we have to calculate n1. Okay, so what we are given, if the limiting inclination of the upper arms to the vertical, okay, limiting friction inclination we have given upper arm inclination. upper arms कौन से है? bp. bp is the upper arm inclination with the vertical. So pd is the vertical line, means vertical axis of rotation. Inclination is given, how much it is? Alpha 1, that is 30 degree. So we will write down alpha 1 is equal to 30 degree. And in second case हमें लोअर आर्म के साथ इंक्लिनेशन नहीं दिया गया है, हमें ओनली अपर आर्म के साथ इंक्लिनेशन दिया गया है. सो अपर आर्म के साथ पहला जो है वो 30 डिग्री है और सेकंड इंक्लिनेशन दैट इज अल्फा 2 विल बी 40 degree. So these two inclination with the help of vertical we have given. Now the second step, what we have to calculate. Calculation is the second step. Always step wise लिखिए, जैसे कि आपको न्यूमेरिकल्स में आउट ऑफ मार्क्स मिले, इसलिए स्टेप वाइज हमेशा स्टेप वाइज आंसर लिखिए. So what we have to calculate? We have to calculate the range of speed. Means we have to calculate n1 at r1. Okay, that we have to calculate. Second case n2 is the maximum speed at r2, that we have to calculate. n1 यहाँ पे हम मिनिमम स्पीड भी लिख सकते हैं, मिनिमम स्पीड n1 at r1. and third case we have to calculate the range of speed. Range of speed is nothing but it is the difference of maximum speed minus minimum speed. These things we have to calculate. So final step, that is the solution. So while finding solution we have two cases. We have to find out n1 and we have to find out n2. So case first, what is the case first? n1, consider n1 is minimum speed at radius r1. So see, this is the r1, this is the radius of rotation r1 and this is the radius of rotation r2. These are the two cases. So r1 is the radius of rotation. Okay, so r1 is nothing but it is bg. Okay, हमें r1 नहीं दिया गया है और r2 भी हमें नहीं दिया गया, हमें वो कैलकुलेट करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल n1 कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल r1 कैलकुलेट करना होगा. तो r1 कैलकुलेट करने के लिए लुक एट दिस डायग्राम. ओके, लुक एट दिस ट्रायंगल BGP. In triangle BGP, according to the Pythagoras theorem, because one of the angle is 90 degree, so according to in triangle PGP, according to Pythagoras theorem, sin 30 is equal to sec. ओके, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक समझाना चाहता हूँ. हमने 11th स्टैंडर्ड में हमने एक सीरियल देखा था. जब हम छोटे थे तो हम एक सीरियल देखते थे, सक लक बुम बुम. ओके, सक मीन्स in case of sin 30 we will take sec. Okay, in case of cos we will take lक. ओके, और ये ऐसे ही लिखा है. सक मीन्स फ्रंट साइड अपॉन हायपोटेनियस. इन मराठी समोरची बाजू भागीला कर्ण. ओके, सो साइन 30 सक मीन्स फ्रंट साइड. सो इसके 30 के एंगल के फ्रंट साइड कौन सी है? दैट इज BG इज नथिंग बट इट इज R1 अपॉन क मीन्स कर्ण, दैट मीन्स हाइपोटेनियस. मराठी में इसे कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसे
हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, अपॉन बी पी. ओके, साइन 30 इज नथिंग बट सक फ्रंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 30 इज इक्वल टू फ्रंट साइड R1 अपॉन हाइपोटेनियस BP. वी हैव टू कैलकुलेट R1. R1 इज नथिंग बट BP साइन 30. ओके, R1 ये BP इधर जाएगा. सो BP कितना है? BP इज 200 mm इज नथिंग बट इज द 0.2. ओके, साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है. ओके, सो आफ्टर द कैलकुलेशन it will be, after calculation it will be 0.1 meter. So R1 is equal to 0.1 meter. R1 हमने कैलकुलेट किया. ओके, now the next step we have calculated R1. now the next step, see हम पहले केस फर्स्ट के लिए देखते हैं. when the governor at minimum speed. okay, we are calculating all the terms for minimum position. So we have calculated R1. now we will calculate H1. see, हमें ये ऑल टर्म्स हमें कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज हमारे पास फार्मूला है n1 स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल mg कैपिटल mg प्लस f माइनस 2. तो उस केस में हमें q लगने वाला है. q क्या होता है? q इज द रेशियो ऑफ tan ऑफ बीटा अपॉन tan ऑफ अल्फा. सो इस केस के लिए हमें ये ऑल टर्म्स, हमें ये ट्रायंगल रिलेटेड ऑल टर्म्स हमें फाइंड करनी होगी. देन एंड देन वी विल कैलकुलेट n1. ओके, so now we will calculate H1. so H1 square, so according to the Pythagoras theorem in this triangle, it is the right angle triangle. so according to the Pythagoras theorem in triangle BGP, hypotenuse square means nothing but it is BP square is equal to one side square means R1 square BG square, okay, plus H1 square. okay, but we have to calculate H1. that's why H1 square will be BP स्क्वायर या R1 स्क्वायर इधर जाएगा, BP स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ BP, हाउ मच BP? दैट इज 0.2 स्क्वायर माइनस R1 कितना है? 0.1 स्क्वायर. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ कैलसी, द आंसर विल बी दैट इज 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर. आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट, the answer will be 0.173. so your answer will be H1 will be 0.1732 meter. this is the H1 value we have calculated. see, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ. जब भी जो फिगर है उसमें यदि आपको अल्फ़ा दिया गया है, बीटा दिया गया है, alpha 2 beta 2 all things, if you have given the angles, then you have to calculate all the sides of triangle. यदि आपको अल्फा बीटा दिया गया तो आप क्या करोगे? आप ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल BGP और दिस ट्रायंगल BGD, इसके ऑल साइड्स की वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करोगे. कि जैसे कि इसमें यहाँ पे 200 mm दिया है, दिस रेडियस ऑफ रोटेशन नहीं दिया था तो हमने ये कैलकुलेट किया, और फिर बाद में हमने H1 कैलकुलेट किया. ओके, तो हमें इस ट्रायंगल के ऑल साइड्स हमें पता चली. अभी सेम ये जो BGD ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इस ट्रायंगल में हमने 250 mm वन ऑफ द साइड कैलकुलेट किया. एक साइड हमें पता है BG, वो कितना है R1, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है. अभी एक ही साइड हमें निकालना बाकी है, दैट इज विल बी DG. तो हमें ये DG साइड कैलकुलेट करना होगा. So according, this is the right angle triangle. So according to Pythagoras theorem, in this triangle BGD, what will be the equation? So BD square, that is hypotenuse square, is equal to one side square, that is BG square, plus DG square. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? DG कैलकुलेट करना है. DG square is equal to BD square माइनस BG स्क्वायर. तो BD कितना है? BD इज नथिंग बट 0.25 स्क्वायर. हमें मीटर में लेना है. C 250 mm 0.25 स्क्वायर माइनस BG नथिंग बट R1 स्क्वायर. सो 0.25 स्क्वायर माइनस R1 हमने कैलकुलेट किया है, दैट विल बी 0.1 स्क्वायर. सो आफ्टर कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कैलसी, 0.25 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर, द आंसर विल बी
डिजिट हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, तो हम स्क्वायर रूट का बटन दबाएंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, द आंसर विल बी 0.229. सो वी विल, यहाँ पे 9 तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, दैट विल बी 0.23. सो डी जी विल बी 0.23 मीटर. ओके, तो इसी तरह से हमने ऑल साइड्स, ये जो दोनों रेक्टेंगल्स है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऑल साइड्स हमने कैलकुलेट कर लिए. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट tan ऑफ अल्फा 1 एंड tan ऑफ बीटा 1. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. सो देयरफॉर tan ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू व्हाट? सी, अभी tan ऑफ अल्फा 1 कैलकुलेट करते समय क्या लेना होगा? दैट विल बी शंभु छेद लंबू. ओके, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये मराठी में इसको समोरची बाजू भागीला लगतची बाजू ऐसे बोले, मीन्स फ्रंट साइड अपॉन फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ओके, शंभु छेद लंबू. शंभु मीन्स यदि ये अल्फा एंगल है, सी लुक एट दिस ट्रायंगल अल्फा 1, शंभु मीन्स फ्रंट साइड मीन्स बी जी अपॉन lambu means adjacent side. Okay, so adjacent side will be this angle की front side and adjacent side will be h1. Okay, means it is nothing but pg. So after putting values, how much will be the bg? Bg is nothing but r1. R1 we have calculated, that will be 0.1, and pg is nothing but h1. H1 we have calculated, that is 0.1732. Okay, कैलकुलेट करना है. सो tan ऑफ अल्फा 1 कितना आएगा? अल्फा 1 एंगल कैलकुलेट करने की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें Q निकालना है. Q क्या है? tan ऑफ अल्फा 1 अपॉन tan ऑफ बीटा 1 अपॉन tan ऑफ अल्फा 1. दिस इज द रेशियो, दैट्स व्हाई वी हैव टू ओनली कैलकुलेट tan ऑफ अल्फा 1. सो tan ऑफ अल्फा 1 विल बी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1732. सो दैट विल बी 0.574. So tan of alpha will be 0.5774. Okay, now we will calculate tan of beta 1. Same case, शंभु छेद लंबू. So now tan of beta 1, so we will consider this triangle tan of beta 1. front side will be bg upon lambu means this adjacent side, that will be dg. Okay, so that will be bg. how much bg? bg is same as that of r1 कितना है? 0.1 है, अपॉन dg कितना है? 0.23. we will calculate this ratio, so that will be 0.1 divided by 0.23. so that will be 0.4348. so tan of it is 0.4348. see here it is 8, that's why we have round of it 0.4348 मीटर. आप जितने डेसिमल पॉइंट्स तक ये वैल्यूज़ लिखते हो, नो इट विल नॉट बी, इट इज द एंगल. आप जितने डेसिमल पॉइंट तक ये आंसर कैलकुलेट करो, उतना ही आंसर की एक्यूरेसी बढ़ती है. ओके, सो नाउ फाइनली आवर इंटीमेशन वाज व्हाट वी हैव कैलकुलेट, व्हाई we have calculated this tan of alpha and tan of beta 1, because we have to calculate q1. so q1 is the ratio of tan of beta 1 upon tan of alpha 1. so after putting these values, after putting both the values, okay, tan of beta 1 will be 0.4348 upon 0.5774. so the answer will be 0.753. so q1 will be this. Okay, so now finally we have to calculate this n1. Okay, so what is the formula for n1? so for minimum speed n1, sleeve moves downward direction. Okay, see, this is the first case. जब भी मिनिमम स्पीड होता है तो स्लीव नीचे के डायरेक्शन में जाती है और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है. ओके, सी यहाँ पे mg प्लस f बाय 2 है. ओके, बिकॉज दिस इज द वेट. ओके, दिस इज द वेट ऑफ स्लीव, दैट्स वाई इट इज़ पॉजिटिव. मैंने आपको अगले वीडियो, पीछे जो वीडियोज़ हमने कवर किया उसमें बोला था कि यदि मिनिमम स्पीड है तो यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा. हाँ, ज़रूर आएगा.
पर ये जो है ये वेट ऑफ स्लीव है, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे होगी mg माइनस एफ बाय 2, वेट के अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन अपवर्ड के डायरेक्शन में हो रहा है, स्पीड मिनिमम हो रहा है, तो फ्रिक्शन भी निगेटिव टर्म में होगा, दैट्स वाई दिस इज द निगेटिव। ये जो है ये वेट है, दैट्स वाई इट इज पॉजिटिव एंड हियर इट इज निगेटिव केस। So the minimum speed is given by formula n1 square is equal to small mg plus capital M into small g minus f divided by 2 1 plus q1 whole terms divided by small mg into 895 upon h1. So this is the formula. सी मिनिमम स्पीड इसलिए यहाँ पे निगेटिव आया है, ओके हमेशा याद में रखिए, ओके। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज हियर स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी माइनस एफ डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस q1, ओके। तो q1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, q1 विल बी 0.753, ओके। होल टर्म डिवाइडेड बाय स्मॉल एम जी, स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, दैट विल बी 2 एंड जी इज द 9.81, ओके 895 अपॉन h1 कितना है, h1 हमने कैलकुलेट किया है कितना है, दैट इज 0.1732. सो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज हियर m, ओके व्हाट विल दैट 2 into 9.81 2 into 9.81 plus capital mg, capital M, how much is the value of capital mg, that will be 15 into 9.81 minus f कितना है 25 है दिया है, divided by 2 1 plus that will be 1 plus nothing but 1.753 divided by 2 into 9.81, okay, into 895 अपॉन 0.1732. नाउ स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसे आप स्टेप बाय स्टेप करिए। जैसे कि हमने ये पहले ये कैलकुलेट कर लिया, बाद में फिर ये सिंपली ये कैलकुलेट किए, उसके बाद इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद इसे ये जो टर्म आई है उसको ऐड करके इसके साथ डिवाइड कीजिए, और सिंपली बाद में ये जो रेशो है इसको उसके बाद लिमिटेड कीजिए। सी आप बोलोगे कि आप सर आप कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहे हो, तो देखिए फ्रेंड्स यदि मैं कैलकुलेशन करते रहूँगा तो इस वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, तो लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेशन करके दिया है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसलिए मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। सो द आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ऑल दिस टर्म्स, सो द फाइनल वैल्यू ऑफ n1 विल बी 183.3 rpm. After the calculation of answer, you have to, don't forget to do the bracket to your answer, okay. So this is the answer of first. So friends, now we will go for the second case. So what will be the case second? Case second is n2 is the maximum speed at radius r2 is equal to radius r2. See the r2 is nothing but it is the bg, okay. So same we have to calculate here, okay. हमें जैसे कि हमने यहाँ पे r1 कैलकुलेट किया था, तो हमें यहाँ पे r2 कैलकुलेट करना होगा। ऑल साइड मैंने पहले ही बताया कि हमें यदि अल्फ़ा और बीटा दिया है तो हमें ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, सही इज द राइट एंगल, हमें इस ट्रायंगल की ऑल साइड्स हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो हमें एक साइड बीपी पता है, तो हमें सेकंड साइड बीजी नहीं पता है, ये r2 दिया है और ये s2 दिया है, तो हमें ये दोनों निकालने होंगे। तो s2 हमें कैलकुलेट करना है, बाद में हम s2 कैलकुलेट। सो r2 कैलकुलेट करने के हमें सिंपली क्या करना होगा, साइन 40 इज नथिंग बट शंभू, फ्रंट साइड इज नथिंग बट इट इज द bg इज नथिंग बट इट इज द r2 upon hypotenuse, that will be bp, okay, bp. So r2
So R2 we have to calculate. R2 is equal to nothing but it is the BP sin 40. ओके, तो हमें BP दिया है, हमें कितना है BP दिया है, that will be 200, is nothing but 0.2 into sin 40. So after the calculation with the help of calci, 0.2 into sin 40, it will be 0.1285. Okay, so the R2 will be we have calculate R2. ओके, R2 आया, तो हमें अभी H2 कैलकुलेट करना होगा. तो H2 कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BGP, ओके, व्हाट विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज BP स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस दिस PG स्क्वायर. ओके, सो BP स्क्वायर, BP कितना है 200 mm मीन्स 0.2 स्क्वायर. BG इज नथिंग बट इट इज द R2 हमने कैलकुलेट किया है 0.1285 square plus PG square. PG is nothing but is the height of governor, that will be H2 square. So H2 square is will be after the calculation in the calci 0.2 square minus in bracket 0.1285 bracket square. We have to take a square root of this value. Okay, square root, after taking the square root directly H2 will be 0.1532 मीटर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ H2. तो हमने H2 कैलकुलेट के लिए R2 करना है. यदि अभी हमें ये DG कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो DG कैलकुलेट करने के लिए वी विल कंसिडर दिस ट्रायंगल BGD. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सी आपको ऑल ट्रायंगल्स में आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड, दैट इज GD स्क्वायर. ओके, तो हमें GD कैलकुलेट करना है. तो GD स्क्वायर इज इक्वल टू ये BD स्क्वायर, BD कितना है दैट इज 250 mm, दैट विल बी 0.25 स्क्वायर माइनस BG इज नथिंग बट इट इज R2 विल बी 0.1285 ब्रैकेट स्क्वायर. सो आफ्टर द कैलकुलेशंस सिंपली आपको कैल्सी अच्छी तरह से यूज़ करना है ताकि मिस्टेक्स ना हो. 0.1285 ब्रैकेट स्क्वायर. सी आप यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आप एक्यूरेसी एंड स्पीड बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैल्सी. सो डायरेक्टली GD विल बी 0.2144 मीटर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ GD. ओके, नाउ फाइनली वी हैव कैलकुलेट ऑल साइड्स. तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे tan of alpha 2. So what will be tan of alpha 2? Tan of alpha 2 is this, front side upon sambuched lambu. Okay, in Marathi front side, that will be BG upon H2, front side upon adjacent side, that will be GP H2. BG कितना है, BG है आपका BG मतलब R2 को हमने कैलकुलेट किया है 0.1285 अपॉन H2 we have calculated now 0.1532. So after the calculation, so the tan of alpha 2 will be 0.1285 divided by 0.1532. Your answer will be 0.839. So tan of alpha will be 0.839. यहाँ पे 7 इसलिए हमने इसे राउंड ऑफ कर लिया. Now we will calculate tan of beta 2. So for the calculation of tan of beta 2, this triangle, see, look at this triangle, front side upon adjacent side. Front side will be beta 2 के सामने की जो साइड होती है वो BG होती है, अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, ये, दैट विल बी DG. और GD हमने जो कैलकुलेट किया है GD. सो आफ्टर द पुटिंग द वैल्यूज
BG कितना है, BG इज नथिंग बट इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, दैट विल बी R2 0.1285 अपॉन GD हमने कैलकुलेट 0.2144, सो द आंसर विल बी 0.1285 divided by 0.2144, so your answer will be 0.599. सो tan of alpha 2 tan of beta 2 हमने कैलकुलेट किया, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम Q2 कैलकुलेट करेंगे. Q2 इज नथिंग बट इज द रेशियो ऑफ tan of beta 2 upon tan of alpha 2. So after taking this ratio, Q2 will be 0.703. ओके, हमने कैलकुलेट करने के बाद Q2 रेशियो आएगा Q2. तो फाइनली अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट. सो नाउ फॉर सेकंड केस सेकंड, we will calculate the speed for maximum speed into sleeve moves in upward direction. See, sleeve moves in upward direction, frictional force will be in downward direction. Sleeve moves order, frictional force will be downward. So according to formula, see, हमने ये जो ऑल फॉर्मुलेशन हमने वो प्रीवियस वीडियो में भी देखे. यदि आपको ये फार्मूले कैसे है ये आपको पता नहीं होता, आप अब मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको क्लियर कट पता चलेगा कि ये जो फार्मूले है वो कैसे आए हैं. ओके, सो N2 स्क्वायर विल बी स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg. अभी देखो मैक्सिमम स्पीड दे आपके, हम पॉजिटिव लेंगे, मैक्सिमम में बढ़ रहा है. ओके, इंटू 1 प्लस Q2 होल टर्म डिवाइडेड बाय स्मॉल mg इंटू 895. यदि आप प्रैक्टिस करते हो ये फॉर्मूले आप रट लोगे. ओके, और ये आप कभी भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हियर, small m will be 2, 9.81 plus capital M will be 15 into 9.81 plus F is the friction. How much it is given? It is be 25 divided by 2. 1 plus Q2 हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.703 into 895 अपॉन H2 हमने अभी कैलकुलेट किया. सो H2 कितना है, H2 will be 0.1532. So after step by step calculation, see simply calculation करेंगे, ये टर्म मल्टीप्लाई करें, बाद में ये टर्म. देखिए यदि 2-3 स्टेप बढ़ते भी है कैलकुलेशन करते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जो फाइनल आंसर वो करेक्ट होना है. यदि आपका फाइनल आंसर करेक्ट है तो यू विल गेट फुल मार्क्स. न्यूमेरिकल में आपका फाइनल आंसर करेक्ट होना चाहिए. सो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करिए, इससे आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी. सिर्फ एक ही स्टेप में कैलकुलेशन करने की चांस मत ले, इससे आप गलती कर सकते हैं और आपका न्यूमेरिकल फाइनल स्टेज पे रॉन्ग हो सकता है. सो आफ्टर द डिटेल एंड आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट, सो द फाइनल वैल्यू ऑफ N2 विल बी 222 RPM. ओके, इसी तरह से हमने प्रीवियस केस में हमने एनुअल कैलकुलेट किया, अभी हमने कैलकुलेट. सो फाइनल वी हैव टू कैलकुलेट रेंज ऑफ स्पीड. सो द रेंज ऑफ स्पीड विल बी, इट इज नथिंग बट इज द डिफरेंस ऑफ N2 माइनस N1. सो N2 विल बी 222 माइनस N1 कितना है 183.3. ओके, सो आफ्टर द कैलकुलेशन योर आंसर विल बी 38.7 RPM. That is the final answer of third. तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने ये न्यूमेरिकल टोटली सॉल्व कर लिया. ये थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल था. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो पोर्टर गवर्नर का जो लास्ट टाइप है दैट इज टाइप 4 वो देखेंगे. इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए और मेरे प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देखिए. यदि आप मेरे ऑल वीडियोस देखते हो तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपका जो थ्योरी ऑफ मशीन है, जो गवर्नर का जो यूनिट है वो आप टोटली पूरा कवर करोगे और आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा और आप न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स गेन करोगे. तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए. So thanks friends, thanks for watching.
यदि आपने मेरे चैनल में गुरु को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल में गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे वीडियोस को आप कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपके कुछ अच्छे सुझाव है तो मैं उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। और फाइनली बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।